A warm good morning, all of you. First of all, my sincere salutation to Param Pujaniya Mataji, who is the founder of Bhartiya Seva Sadan, and this education hub, that is Srimati Radhe College for Women, Akola. My sincere salutation to Honorable President Shri Dilip Rajji Goenka sir and Honorable Principal Dr. Devendra Ji Vyas sir and Honorable Vice Principal and Head Department of Commerce, Honorable Dr. Ambadas Ji Pandey sir. Vice Principal Sri Parimalji Muzumdar sir. Most important part of this webinar, that is the keynote speaker, Mr. Siddhantji Agrawal. Once again, a warm good morning, all of you. Srimati Radha Devi Goenka College for Women is established by the mission empowerment of women through economic independence for betterment of society. Our mission is to impart holistic education in order to transform the girls into empowered, self-earning and efficient individuals, family members and citizens. That is why Honorable President and Honorable Principal Sir is always supporting us. As our students are from rural background or area, by considering this, our management is always thinking about the welfare of students, for the lustrous future of our students. And that is why our college avail this opportunity for you all. As Bajaj Finserv is a powerful brand in financial sector. The main objective of this webinar is to impart online certificate course in banking, finance. It will add some value in your resume. So dear friends, now question arising in your mind. What is the purpose of this webinar? Why should I attend this webinar? And why should I join this program? So for giving the answer of these all questions, there is a Siddhant Agrawal sir. So before hand overing, giving this opportunity, to Mr. Siddhant Agrawal sir, I just want to explain his profile. मैं सर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी. Today's keynote speaker, who is a versatile personality in the corporate sector, Siddhant Agrawal sir has more than 17 years of rich experience in the field of finance. He is a co-founder of MyProfim Learning Solution Limited and an NISM CPE trainer for mutual funds and equity derivatives. In the same manner, he has completed his MBA in Finance, MCOM, Certified Financial Planner, Chartered Wealth Manager, and currently pursuing Certified Financial Analyst from USA. Sir is a financial coach, passionate learner, innovative, and believes in disciplined execution of ideas and strategies. Sir worked for various companies like Ventura Securities Limited, ILNFS, InvestSmart India Limited, Reliance Age Academy, and last job was with ICICI Direct Center for Financial Learning as a Senior Knowledge Manager at Pune. In the same manner, till date, he has conducted more than 1100 workshops and seminars for various organizations. And he has conducted and delivered more than 400 investor awareness programs. He is a trainer for Bajaj Finserv Limited pertaining CSR trainings. In the same way, he is management development faculty for public sector undertaking. Meanwhile, he is a good orator and regular contributor of articles in financial magazines and newspaper. He has conducted various programs on topics like financial planning, financial mathematics, foundation in equity,
beginners F&O, derivative strategies, debt and alternative investment, commodities, mutual fund, etc. He imparts training for CFP, CWM, equity and mutual funds, and soft skill for corporates. He is a guest faculty for management colleges and has delivered guest lecture in institute like Kumba, Symbiosis Institute of Management, Lexicon, Sinhagad Institute of Management, etc. So now this is the all about the reach and the well-experienced profile of Mr. Siddhant Agrawal, sir. Now this meet platform is yours, sir. Over to you, sir. Yes, ma'am. Thanks a lot for giving such a warm welcome. And I'm not that much a big personality. I want to be moderate and humble. So thanks for the overall welcome. I'm highly obliged by this one. So students, I would directly start to connect with you. मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और सबसे पहली बात, हम यहाँ पे एक डायलॉग करना चाहते हैं. डायलॉग का मतलब है आप भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा. इट वुड नॉट बी अ मोनोलॉग जहां जो है सिर्फ मैं बोल रहा हूं और आप सिर्फ सुन रहे हैं. सो आपको हर बार जो है चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करना है. मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं, आप जवाब देंगे, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं. तो हम एक बोलते हैं ना पॉजिटिव वे में जो है डिस्कशन करना चाहते हैं, ताकि आपके भी मन में जो विचार चल रहे हैं कि आज ये जो है कोविड आया है, आगे मुझे करियर के लिए क्या पर्सपेक्टिव है, मैंने आगे क्या करना चाहिए, व्हाट इज द राइट वे फॉर मी. ठीक है, तो वो सब चीजें जो चीजें आपके मन में आ रही है हम डिस्कस करें. डिस्कस करने से ही सोल्यूशन मिलता है. ठीक है, सो आर वी इन फॉर द प्रोग्राम? कैन वी स्टार्ट? Just put up the chat box. Yes, Achal is saying yes. Great. चलो, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके. इसी तरह के मुझे रेस्पॉन्सिव ऑडियंस अच्छे लगते हैं. चलो बच्चों, देखो हमने जो है ना लास्ट ईयर जो है ना बहुत टफ समय देखा है, और इनफैक्ट वो स्पैन अभी तक चल रहा है, क्योंकि हम अपनी कॉलेज को लाइक करते हैं, हम अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लिमिटेशंस की वजह से अभी तक जो है कॉलेज स्टार्ट होने के हैं अभी. हाँ, अब मुझे बताओ कि ठीक है, कोविड एंड दिस एंटायर लॉकडाउन हैज चेंज द एंटायर वर्ल्ड फॉर यू गाइस, आई वुड से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, है ना. तो आप जो एक जो क्रूशियल ईयर था वो फिजिकली क्लास अटेंड नहीं कर पाए. और मुझे बताओ इसके अलावा आपको सबसे ज्यादा चैलेंज क्या लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी चीजों में आपको क्या लगता है, ऐसे कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है गोइंग अहेड फॉर यू? सबसे बड़ा चैलेंज. यस बेटा, यू कैन टाइप अप इन द चैट बॉक्स. क्या लगता है आपको कि आगे किस चीज में आपको परेशानी लग रही है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच यू हैव गॉन थ्रू द लास्ट 1 year? Yes, lack of job opportunity. Poonam is saying, sir, lack of job opportunities. Job. फिर अंकिता ने भी कहा है कि सर जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में चिंता हो रही है हमें. यस, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, है ना. तो मेजॉरिटी फॉर द जॉब, सभी लोग जो है जॉब के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, क्योंकि आपने एक विजन बना के रखा था कि द मोमेंट आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन आई वुड बी लुकिंग आउट फॉर जॉब, एंड विथ माई स्किल सेट, मेरे जो नॉलेज है, जो मुझे जो यहाँ पे कॉलेज में सिखाया गया है, इतने अच्छे से पढ़ाया गया है, तो मुझे एक डिसेंट जॉब मिल जाएगा जैसा मैं चाहती हूँ. एम आई राइट? लेकिन जब आप 1 साल पहले तक के कॉन्फिडेंट थे, अब आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं. क्यों? क्योंकि आपको सिचुएशन समझ में आ रही है. सिचुएशन क्या है? बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है. फर्दर, कॉर्पोरेट जो है अभी ज्यादा हायरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन है. इकोनॉमी में स्लो डाउन है, और अब हमें डर लग रहा है क्योंकि इतने सारे लोग इच्छुक हैं जॉब लेने के लिए, तो क्या मुझे इस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में जॉब मिलेगा क्या? एम आई राइट? क्या मैंने सही तरह से पुटअप किया हूं? यही चल रहा है दिमाग में? यस. बच्चों देखो, ये तो आपने कहा प्रॉब्लम है ना, बट आप लोग जो है ना
मुझे ये श्योर है कि आप प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह से नहीं देखते। हर इंसान प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, आपको भी प्रॉब्लम समझ रही है, हर इंसान को प्रॉब्लम समझ रही है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि अरे यार प्रॉब्लम की तो सब बातें करते हैं, चलो एक बार सोचते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो असली इंसान वो होता है जो सॉल्यूशन की बात करता है। प्रॉब्लम की तो हर इंसान बातें करता है, ये प्रॉब्लम है, यहां वो प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम इज विजिबल, लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपने क्या करना चाहिए? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर सेल्फ। आप बताइए क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए? तकलीफ तो है बेटा। व्हाट कुड बी डन टू कम आउट ऑफ दिस होल? यस बच्चों, एनीथिंग जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कुछ पुटअप करो चैट बॉक्स में। फाइंडिंग जॉब, बेटा जॉब आप फाइंड कर रहे हो नो डाउटेडली, लेकिन जॉब की अगर स्केर्सिटी है ना, पहले जो है कंपनीज जो है 100 बच्चों को रिक्रूट करना चाहती थी, अब हार्डली 50 बच्चों को रिक्रूट करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ गया है, तो एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे नो डाउटेडली कि आपको और कई जगह अपने एप्लीकेशन पुटअप करना होगा। यस स्वाति, डेवलप आवर कोर कॉम्पिटेंसीज। स्वाति बेटा थोड़ा सा इसमें एलोबरेट करोगे, एक बार अनम्यूट करके अपने आप को, इफ यू आर एबल टू अनम्यूट बेटा एंड यू आर कंफर्टेबल। Yes, sir. यस बेटा। Yes, sir. हाँ बेटा। Sir, in this era, we have to be different from the others, Yes. or we have to be our skill that made different from you from others. Yes, you have to stand out in the crowd. Swati. Aptly said, really good. स्वाति म्यूट कर दो बेटा। हाँ हाँ हाँ, सो बहुत सही कहा स्वाति ने। आपको जो है स्टैंड आउट करना होगा क्राउड में, आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना होगा और आपको अपनी कॉम्पिटेंसीज और स्किल पे काम करना होगा, तभी आप जो है उन 50 बच्चों में भी अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे एंड प्रॉपरली जो है रिक्रूट कर पाएंगे। तो ठीक है बेटा, आप लोगों ने ये कहा तो है कि हाँ हमें जो है अपस्किल करना है, अपनी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना है एंड अदर थिंग्स, बट आप इसके लिए क्या कर रहे हैं टू अपस्किल योरसेल्फ? आज करेंटली क्या कर रहे हैं? तो उसी लिए जो है हमने जो है एक प्रोग्राम लाया है आपके लिए, दैट इज कॉल्ड एज CPBFI। तो मैं जस्ट आपको जो है यहाँ पे स्लाइड के थ्रू जो है मैं यहाँ पे एक बार पहले दिखाता हूं आपको। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट प्रेजेंट। हाँ बच्चों, विजिबल है ये? Yes, sir. या देखो ये क्या है। Sir, please share your PPT. या इट्स नॉट PPT, इज जस्ट अ सिंगल स्लाइड मैम। हाँ सो बच्चों ये देखिए, ये आप दिख रहा है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। मैं होप करता हूं आप सभी लोग जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या कुछ जो है फाइनल ईयर जस्ट पास आउट हुए होंगे, उसी तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो देखो बच्चों क्या, Yes, sir. तो देखो Yes, बच्चों sir. आप सभी लोग Yes, जो है sir. शायद जो है PG लेवल पे जाना नहीं चाहेंगे। आप जो है कई बार ऐसा लगता है अब बहुत पढ़ लिए, अब थोड़ा जॉब करते हैं, थोड़े समय जॉब करते हैं, कुछ नॉलेज गेन करते हैं, कुछ कमाते हैं, और फिर अगर लाइफ ने अलाउ किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेंगे, ऐसे भी कई लोग सोचते हैं। तो पॉइंट ये है, जस्ट समझिए, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। अभी रिसेंटली जो है ना, आउटलुक मैगजीन का नाम सुने आपने? आउटलुक मैगजीन ने रिसेंटली इंडिया में एक सर्वे किया था, स्टडी किया था, जिसमें पाया गया कि 60% इंडिया के ग्रेजुएट्स, क्या कहा मैंने, 60% इंडिया के ग्रेजुएट्स नॉन एम्प्लॉयबल है। नॉन एम्प्लॉयबल का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट आपको जॉब देना चाहता है लेकिन आप में वो स्किल नहीं है जो वो ढूंढ रहा है। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन बच्चों समझ लो अनएम्प्लॉयबिलिटी इज अ मच मच बिगर प्रॉब्लम। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी, कि आप जो रिक्रूटर जो आप में एक्सपेक्ट करता है वो स्किल आप में नहीं है। ठीक है, तो हमने बीइंग फ्रॉम बजाज, हम जो है बजाज फिनसर्व इज अ बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द फाइनेंशियल डोमेन।
बजाज फिनसर्व में करीब करीब जो है 25,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं पैन इंडिया। तो जब बजाज जो है रिक्रूटमेंट करता है, हर साल रिक्रूटमेंट करता है, इनफैक्ट हर महीने रिक्रूटमेंट करता है, तो जब हमारी एचआर टीम रिक्रूटमेंट के लिए जाती है और सोचती है कि हाँ हमें इस कॉलेज से जो है 100 बच्चों को रिक्रूट करना है, इस तरह से मेंटालिटी लेके जाती है, तो भी वहां से वे मैक्सिमम जो है 7-8 बच्चे या 10 बच्चे ही रिक्रूट कर पाते हैं। क्यों ये प्रॉब्लम क्यों होता है? हम तो 100 बच्चे रिक्रूट करना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलते 8-10 बच्चे ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है और बच्चों में जो स्किल है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, आपको जो है एकेडमिक चीजें सिखाई जाती है और हम ये चाहते हैं, जैसे कोई भी रिक्रूटर क्या चाहता है कि आज आप पहले दिन से, पहले महीने से हमारे लिए प्रोडक्टिव हो। हम इतना समय स्पेंड नहीं कर सकते कि हम आपको 6 महीने ट्रेनिंग देंगे, फिर आप जब सीख जाए तब आप बोले सर अब मुझे मन नहीं लग रहा है, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूं। सो दैट शुड नॉट बी द केस। तो क्या चाहते हैं रिक्रूटर्स? इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। क्या चाहते हैं? इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में अपने आप को एक करियर के तौर पे देखना चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड और से यस। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, है ना। चलो मैं किसी से भी बात करता हूं, पल्लवी, सोनाली, प्रगति, कोई भी। आंचल, चलो आंचल तुम बताओ, तुम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जो है जॉब क्यों लेना चाहती हो? व्हाट इज द रीजन? Actually, sir, I'm interested in banking sector and also in corporate sector, and I want to join private sector. And I have to एक्चुअली मैं ऐसा सोचती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में और जो ये फाइनेंशियल सेक्टर में ना हमारी स्किल्स की वैल्यू होती है, देन आवर नॉलेज, सो दैट आई एम इंटरेस्टेड टू डू जॉब इन कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव है तुम्हारा, कोई कंफ्यूजन नहीं है दिमाग में, एक क्लियर अप्रोच है तुम्हारी कि हाँ मुझे ये करना है। वो क्लैरिटी लाइफ में बहुत अच्छी चीज रहती है। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि आप बीएफएसआई डोमेन में क्यों जाना चाहते हैं? एनीवन? पल्लवी? चलो ठीक है, तुमने जो भी बताया आई वुड रियली एग्री। देखो मैं एक सिंपल सी चीज यहाँ पे पुटअप करता हूं, आप लोगों ने ये डोमेन क्यों चुना? क्योंकि कैसा है ना, ये जो सेक्टर है ना, इंडस्ट्री है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, ये जो है बहुत ग्रो हो रही है। इंडिया में अभी भी जो है इसका पेनिट्रेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है, और जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन है, आगे भी छोटे छोटे लोकेशंस में भी, टाउन्स में, छोटी सिटीज में, गांव में भी जो है बैंकिंग का पेनिट्रेशन अभी बहुत होना है। तो ये जो है, ये जो डोमेन है ऑन द वर्ज ऑफ इन्फ्लिक्शन है, और इसमें आगे भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। और क्योंकि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ अच्छी है, अगर आप इस इंडस्ट्री को आज ज्वाइन होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो होंगी तो आपकी ग्रोथ भी नेचुरल है, तो आप भी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ धीरे धीरे आपकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है, जैसे आप जैसे बड़े बड़े जो नाम हैं, राधिका बेटा प्रेजेंट मत करो, हाँ, जैसे बड़े नाम है चंदा कोचर मैम, तो वो जो है बैंकिंग में जो है एक ऑफिसर लेवल पे ही ज्वाइन करी थी, और धीरे धीरे हायरार्की में बढ़ के जो है वो सीईओ लेवल तक के पहुंच गई। तो जैसा आंचल तुमने कहा ना, ये एक ऐसा डोमेन है जो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, और आज भी जो है बैंकिंग डोमेन में ही जो है, अगर आप मेल फीमेल कॉम्पोजिशन देखते हैं तो ऑलमोस्ट इसी में जो है, यही इंडस्ट्री में जो है, यहाँ पे फीमेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स। बाकी किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। और एक और चीज, अगर इस डोमेन में आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी ग्रोथ तो है ही, और कल चल के देखिए, प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं हम, है ना, कि आपने अभी यहाँ पे 2 साल जॉब किया, से सपोजिंगली में आपको अकोला में जॉब लग गया, अब चल के जो है शादी होती है आपकी, और आप दूसरी सिटी में मूव होती है, तो ये डोमेन ऐसा है कि आपको हर सिटी में इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पुणे मुंबई जाके ही जॉब कर सकती है, आप किसी भी सिटी में चले जाइए, किसी भी टाउन में चले जाइए, आपको वहां पे भी इस डोमेन में जॉब मिलना
श्योर है दैट इज द गुड थिंग, क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पोस्ट मैरिज कई बार वो कंटिन्यू नहीं कर पाती अपनी जॉब, क्योंकि उस सिटी में, उस जगह में वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। सो इस तरह से ये डोमेन बहुत अच्छा है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क। मैरी, पल्लवी, वैष्णवी, अगर मैं आप लोगों को कहता हूं बेटा मैं आज आपको जो है से सपोजिंगली एक्सिस बैंक में रिक्रूट करता हूं और आप आज पहले महीने से मेरे क्लाइंट्स को हैंडल करो, उनको कहां कहां इन्वेस्टमेंट्स करना है उन्हें गाइड करो, उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करो और उन्हें पूरे तरह का गाइडेंस दो, हाउ टू गो अबाउट देयर मनी। क्या आप ये कर सकते हैं क्या पहले महीने से? बेटा आप लोग कॉमर्स के ग्रेजुएट है, आपको तो आना चाहिए, लेकिन देखिए अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, नहीं आता है, क्योंकि सही बात है हमें जो है प्रैक्टिकल लेवल पे बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स है उनकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला ना, जो गैप थी वो किस तरह की गैप है समझ में आता हूं आपके स्किल सेट की। सबसे पहले जिस इंडस्ट्री में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या इंश्योरेंस हो या फाइनेंशियल डोमेन है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी बहुत आपको होना बहुत जरूरी है। एकेडमिक नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज कि बैंक्स कैसे काम करते हैं, उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने तरह के लोन होते हैं, बैंकिंग की क्या क्या प्रोसेस होती है, वो नोन होना चाहिए। तो आपको जो है हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से सोचा कि बैंकिंग और इंश्योरेंस डोमेन का पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, ताकि आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें आ जाए, वो कवर करेंगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप बच्चों में मिसिंग होती है वो ये होती है, थोड़ा सा जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। एम आई राइट? जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, हमें डर लगता है कि कई बार हमें नॉलेज भी होता है लेकिन हम अपने नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उस रिक्रूटर के सामने हम घबरा जाते हैं, आंसर आते हुए भी जो है जबान लड़खड़ा जाती है और बोल नहीं पाते हैं, है ना। सो वी विटनेस दैट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम के लिए क्या किया जा सकता है बच्चों, क्या किया जा सकता है? हम बेसिकली बाय नेचर जो है शाय नेचर के हैं, इंट्रोवर्ट है, हर एक के सामने फट से मिक्स नहीं हो पाते हैं, ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, किसी के सामने पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ बोले तो पैर कांपते हैं। एम आई राइट? तो ये छोटा सा स्किल सेट नहीं है बच्चों तुम में। देखो ये अगर तुम्हें नहीं आता है ना तो कभी भी अपने आप को इंफीरियर नहीं फील करना। ये डिफरेंस ये है कि जो सामने जो रिक्रूटर बैठा है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जो 100% है, मैं भी एज अ ह्यूमन बीइंग 100% हूं। डिफरेंस बस ये है कि उसमें जो है ये प्रेजेंटेशन के, बातों करने के स्किल थोड़े से ज्यादा है और मुझ में वो स्किल थोड़े से कम है। और कोई भी स्किल जो है प्रैक्टिस से जो है हम एक्वायर कर सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। अभी मैं जैसे भी तुमसे बात कर रहा हूं, लग रहा है कि मैं डर रहा हूं? लग रहा है क्या? नहीं। पॉइंट ये है, पहले मैं भी तुम्हारे समय जब था स्कूल में, कॉलेज में, मैं बहुत डरता था इस तरह से बात करने में, लेकिन ओवर अ पीरियड जब मैंने इतने प्रेजेंटेशन दिए, इतने सेमिनार्स लिए, प्रैक्टिस किया, तो धीरे धीरे ये डर निकल गया और अब ये मेरा पैशन बन गया है, मैं बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहता हूं। सो उसी तरह से आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। तो इसीलिए हमने इसमें एक मॉड्यूल लाया जिसे कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें आपके लिए क्या क्या कवर किया जाएगा कि आपके लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, बहुत सी एक्टिविटीज कराई जाएंगी आपकी, पर्सुएशन स्किल्स, किसी को कन्विंस कैसे करना, वैसे स्किल्स। तो ये जो है बहुत से प्रैक्टिकल बेस्ड जो है चीजों के थ्रू जो है आपको पार्टिसिपेट किया जाएगा। आप 1 मिनट भी खाली नहीं बैठेंगे क्लास में, आपको कंटिन्यूअसली आपके टोस पे रहना होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलेंगी, आप पार्टिसिपेट करेंगे। जितना पार्टिसिपेट करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपके जो है ये डर निकलते जाएगा। तो पॉइंट ये है, हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये देखिए ये क्या कवर करता है। ये है, प्रोग्राम का नाम है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या कवर होता है। सबसे पहले मेजर पोर्शन है बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसे आप कॉर्पोरेट में ज्वाइन होते हैं, कॉर्पोरेट में ज्वाइन होते से ही अगर मैं कहता हूं कि बेटा आज आपको अपने बॉस को या जो है एचआर को एक मेल करना है, तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं, अरे मेल में मेरी लैंग्वेज गलत हो गई, मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो गया, कैसे सैल्यूट करते हैं मेल में, मुझे अच्छे से नहीं आता है।
तो आप थोड़े से घबराए हुए। अगर ये चीजें आपने पहले से सीख ली तो आप डरेंगे क्या मेल करते समय किसी को भी? नहीं। तो आपको ईमेल एटिकेट्स, ईमेल कैसे किए जाते हैं, मीटिंग के एजेंडास कैसे होते हैं, कैसे मीटिंग कन्वेन की जाती है, ठीक है, और प्रेजेंटेशन कैसे देना, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना, अपना सीवी कैसे राइट करना, ये सभी चीजें जो है ये बिजनेस कम्युनिकेशन में इन डिटेल करी जाएंगी। आप अगर सेल्स में जाते हैं तो प्रोडक्ट सेल कैसे करना, अगर आप किसी चीज को बेच सकते हैं तो यानी आप एक इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू क्या है, आप अपने स्किल्स को वहां पे बेच रहे हैं। सो सेलिंग स्किल इज रिक्वायर्ड बाय एवरी इंडिविजुअल। तो वो सभी चीजें बिजनेस कम्युनिकेशन में कवर की जाती है। देन होता है आपका इंश्योरेंस डोमेन। इंश्योरेंस, जैसे अभी कोविड ने हमें समझा दिया कि इंश्योरेंस की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। मैं जस्ट अपना ही एग्जांपल बताना चाहूंगा। बेटा, सितंबर में मैं भी पॉजिटिव हुआ था और मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, ठीक है, और उस समय जो है हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बहुत ज्यादा थे, लेकिन मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस था, तो मुझे वो टेंशन नहीं था कि इस खर्चे के लिए जो है मेरे फैमिली में जो है, एक मेरे घर में जो है बहुत खर्चा लग रहा है। तो देखिए, जब आप बीमार हैं और साथ में दिमाग में ये भी चलता है कि मेरे घर में खर्चा लग रहा है, मेरे पॉकेट में होल हो रहा है, ये चिंता में आपकी तबीयत ठीक होगी या और बिगड़ेगी? इट वुड इंप्रूव और गेट वर्स। लेकिन मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस था तो मुझे वो चिंता नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी रिकवर किया और आज यहां आपके सामने बैठा हूं, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या रहता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं। आप जैसे रूरल डोमेन से है तो क्रॉप इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, पोल्ट्री इंश्योरेंस क्या होता है, ये सब चीजें क्या है, गवर्नमेंट की इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या क्या स्कीमें हैं, ये सभी चीजें प्रैक्टिकल लेवल पे आपको सिखाई जाएगी इन इंश्योरेंस डोमेन। फिर नेक्स्ट एक मॉड्यूल है आपका बैंकिंग। बैंकिंग में जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक कैसे काम करते हैं प्रैक्टिकली, उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट में किसी को इन्वेस्ट करना है या जो भी वो प्रोडक्ट करना है तो क्या प्रोसेस होती है, केवाईसी क्या है, डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, ये सभी चीजें जो है प्रैक्टिकल लेवल पे सिखाई जाती है। तो ये प्रोग्राम है CPBFI, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। अब इसमें जो फैकल्टीज होंगी जो आपको पढ़ाएंगी, वो फैकल्टीज हाईली इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है, जिन्होंने मिनिमम 8-10 साल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, एंड दोज हु आर वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर नाउ। तो उन्हें इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जैसे मैं बैंकिंग का एग्जांपल देता हूं, बैंकिंग की जो आपकी फैकल्टी रहेंगी, he has been the, I would say, associate vice president with a leading bank। वो जो है अब जो है उन्होंने जॉब छोड़ दिया है एंड नाउ ही इज वर्किंग एज अ बैंकिंग ट्रेनर। तो उन्हें इतने सारे एक्सपीरियंसेस है शेयर करने के लिए कि आप जो पूछे उसके रिलेटेड उनके पास में एक एक्सपीरियंस है, स्टोरी है बताने के लिए प्रैक्टिकल। तो ये सब चीजों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। सेम वेज इंश्योरेंस आई वुड टेक अप और सम अदर फैकल्टी। और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए जो फैकल्टीज है वो हाईली एनर्जेटिक है, वो आपको 1 मिनट खाली नहीं बैठने देंगी, आपको अगेन एंड अगेन पार्टिसिपेट करना होगा, बहुत मजा आएगा, यू वुड एंजॉय ईच एंड एवरी क्लास। ये जस्ट मैं बताता हूं मेरा एक्सपीरियंस। हमने देखा है कि कई बैचेस में जब पहला दिन होता है क्लासेस का तो बच्चे अपना नाम भी बराबर बोलने में घबराते हैं, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन इस क्लासेस के होते हैं बच्चे इतने ईगर रहते हैं कि सर मुझे पहले प्रेजेंटेशन देना है, आई वांट टू कम फर्स्ट, आई वांट टू कम फर्स्ट, ऐसी होड़ लग जाती है। सो वो डिफरेंस हमने देखा है ओवरऑल आफ्टर द कंडक्ट ऑफ दिस थिंग। सो ये प्रोग्राम है दैट इज CPBFI। अब ये CPBFI कितने दिन का प्रोग्राम है? ये ऑनलाइन होता है। ये गूगल मीट प्लेटफॉर्म जिसपे आज हम बात कर रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे जो है आपसे ये प्रोग्राम किया जाता है। इसमें जो है टोटल जो है 56 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें जो है मेजर पार्ट बिजनेस कम्युनिकेशन है और बाकी 2 पार्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस के। यानी हर रोज 2 घंटा रोज 56 आवर्स, यानी कितने दिन हुए? 56 डिवाइडेड बाय 2, यानी 28 डेज में जो है आपका ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। सो आप स्किल भी एक्वायर करते हैं, प्लस बजाज फिनसर्व से आपको ये एक सर्टिफिकेशन मिलता है विच हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द इंडस्ट्री। क्योंकि
जब भी रिक्रूटर रहता है, रिक्रूटर को मालूम है आपसे आपका स्किल के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके पास में 5-10 मिनट है। 5-10 मिनट में वो आपका नॉलेज कैसे समझेगा? लेकिन जब आपके पास में CPBFI सर्टिफिकेशन होता है, उसे समझ जाता है हाँ ये बच्चा जो है ये सभी ड्रिल से गया है 30 दिन के, इसने पूरी ये प्रोसेस करी है, ये स्किल्स एक्वायर करे हैं, तब मेरे पास आया है। तो ऑटोमेटिकली यू हैव एन अपर एज ओवर एंड अबव द पीयर्स। तो पॉइंट ये है बच्चों, मुझे बताओ लॉकडाउन में आपने कितना वेट पुट ऑन किए? आई वुड से लॉकडाउन में थोड़ा बहुत तो वेट पुट ऑन किए होंगे ना बच्चों, क्योंकि घर पे ही थे। यस और नो? यस, हाँ। तो बेटा अपना तो पुट ऑन कर लिए, अब अपने रेज्यूम पे भी थोड़ा वेट पुट ऑन करना है, समझे? तो अब अपने रेज्यूम में जब आप ये CPBFI पुटअप करते हैं कि आप गॉन थ्रू द CPBFI सर्टिफिकेशन, तब उसका वेट बढ़ता है। तो आपके वेट के हिसाब से रेज्यूम का भी वेट होना चाहिए ना, एम आई राइट? सो दैट इज योर CPBFI सर्टिफिकेशन। तो हार्डली 30 दिन में आपको 2 सर्टिफिकेशन मिलते हैं। पहला सर्टिफिकेशन जो मैंने कहा CPBFI, दूसरा एक सर्टिफिकेशन है रिगार्डिंग द HR वर्कशॉप। HR वर्कशॉप क्या होता है मैं समझा देता हूं आपको। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर किए, आप वो इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाए, तो आप डिजेक्टेड फील करते हैं, डिमोरलाइज फील करते हैं, अरे मेरा वो इंटरव्यू में नहीं हुआ सिलेक्शन। लेकिन क्या वो इंटरव्यूअर आपको बताता है कि आपने क्या गलती करी वहां पे? क्या वो इंटरव्यूअर बताता है क्या कि आपने बेटा ये गलती करे, अगर ये गलती नहीं करते तो मैं आपको रिक्रूट कर लेता? बताया जाता है क्या? नहीं, कभी नहीं बताते। कि वो नहीं बताते, हम वही गलती बार बार दोहराते जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे HR वर्कशॉप में क्या होता है, एक मॉक इंटरव्यू लिया जाता है ऑलमोस्ट एक्चुअल लेवल पे आपके, जिसमें बजाज की HR टीम आपसे इंटरव्यू लेती है ये 28 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद। तो इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है, पूरी इंटरव्यू की प्रोसेस फॉलो की जाती है। Sorry students, the light went off, so the Wi-Fi stopped here and I am reconnecting here. हाँ, तो what I was saying कि recruiter आपको बताता नहीं है। Am I audible properly? Yes, sir, you are audible. तो रिक्रूटर बताता नहीं आपने क्या गलती है। यहाँ पे क्या है, बच्चा आपसे जो है एक इंटरव्यू लेगा और इंटरव्यू सारी प्रोसेस फॉलो की जाएंगी। द HR टीम फ्लोट करेंगी आपकी कॉलेज में कि मैम हमारे कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में ये सब जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है, ये सब प्रोफाइल्स के लिए। तो अब आप ये सभी प्रोफाइल्स देखेंगे, ये 10-15 प्रोफाइल्स है, इसमें से आपको आपकी पर्सनालिटी को कौन सा प्रोफाइल सूट करता है, एंड अकॉर्डिंगली उस प्रोफाइल के लिए आप एक राइटिंग में एप्लीकेशन कर जो है जॉब पे अप्लाई करेंगे। फिर एक टाइम स्लॉट दिया, बजाज का पूरा पैनल है रिक्रूटर्स का, रिक्रूटमेंट जिनका वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, तो वो उस इंटरव्यू पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू जिस जॉब प्रोफाइल किया है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्पीकिंग स्किल, योर फंक्शनल स्किल, ये सब एसेस किया जाएगा। और वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, जस्ट 1 सेकंड में तो वीडियो ऑफ कर देता हूँ। हाँ, इज इट ऑडिबल नाउ? तो अब आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में जो है आपको सभी तरह से एनालाइज करके फिर आपको आखिरी में 5 मिनट में जो है जो रिक्रूटर की टीम है वो आपको बताएंगी बेटा ये सब चीजों में आप बहुत अच्छे थे, ये 2-3 चीजों में आपको थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो कोई भी रिक्रूटर आपको लिए बगैर छोड़ेगा नहीं। तो अब आप जब उस रूम से बाहर आते हैं आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने इंडस्ट्री का जो लीडर है बजाज फिनसर्व
उसका इंटरव्यू क्रैक करी हूं, और जब मैं इंडस्ट्री लीडर का इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूं तो किसी भी और इंडस्ट्री जो है कंपनी का इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकती हूं। सो ये कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है एज सच इन योर ओवरऑल वेलबींग। तो जब आप ये पूरा प्रोग्राम करते हैं ना, इसे कहते हैं एचआर वर्कशॉप। तो इस वर्कशॉप का भी जो है रिक्रूटमेंट का, जो मैंने कहा ना मॉक इंटरव्यू का, इसका भी आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एचआर वर्कशॉप सर्टिफिकेट। सो आपको बेसिकली जो है 30 दिन में 2 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। द वन इज द CPBFI सर्टिफिकेशन एंड द अदर इज द HR वर्कशॉप सर्टिफिकेशन। तो 30 दिन में 2 सर्टिफिकेशन, इट्स अ ह्यूज वैल्यू। और अगर आप इस तरह का प्रोग्राम कहीं और पुणे मुंबई जाके करते हैं तो ये प्रोग्राम का नॉर्मली जो चार्ज किया जाता है दैट इज अराउंड 1 लाख 1.5 लाख। और बजाज को खुद को जो है ये प्रोग्राम आपके तक लाने के लिए जो खर्चा आता है दैट इज रफली अराउंड 30,000 रुपीज पर स्टूडेंट। यानी हर स्टूडेंट के पीछे बजाज कितना खर्च करता है? 30,000 रुपए प्रति स्टूडेंट पे खर्च करता है। लेकिन क्योंकि बजाज सोचा कि हमें जो है सोसाइटी के लिए, अच्छे के लिए कुछ करना है, इसीलिए उन्होंने ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बनाया है अंडर CSR एक्टिविटी। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो भी कमाई होती है, प्रॉफिट होती है, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए खर्च करता है। तो बजाज ने सोचा कि सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बच्चों के पास में वो स्किल नहीं है जो रिक्रूटर ढूंढ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दे हैव मेड दिस प्रोग्राम व्हिच इज अ ब्रिज बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिक्रूटर एंड द स्किल सेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में स्किल्स होते हैं, तो आपको हम ये कहेंगे ये प्रोग्राम जो है ये ऐसा प्रोग्राम है वेयर आई वुड से अपॉर्चुनिटी मीट्स आई वुड से कैपेबिलिटी। आप बच्चे कैपेबल है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके स्किल को अपग्रेड करने के लिए। आपके स्किल अपग्रेड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और आज जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो यू गेट दिस काइंड ऑफ अ बेनिफिट थ्रू दिस प्रोग्राम। तो ये 30 दिन में आपको ये 2 सर्टिफिकेशन करा दिए जाते हैं, और ये प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी जो है बहुत से कॉलेजेस के साथ हो रहा है। हमने अकोला में अभी तक सिर्फ आपके कॉलेज के साथ टाई अप किया है, क्योंकि हमारा जो है गोयनका ग्रुप के साथ में जो है एक बहुत पुराना रिश्ता है, बीइंग विद एज बजाज एंड गोयनका ग्रुप आर सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप्स एंड विद सिमिलर आइडियोलॉजी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे RDG के साथ ही जो है आपके कॉलेज के साथ टाई अप किया है। तो ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली आपके कॉलेज के बच्चों को ही अवेलेबल है। अगर कोई और कॉलेज के बच्चे ये प्रोग्राम करना चाहते हैं तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं हार्डली 30 डेज, और आपको ये सर्टिफिकेशन इसमें मिल जाता है। द ओनली रिक्वायरमेंट एंड कमिटमेंट इज दैट कि आपको जो है सिंसियरली इसे अटेंड करना होता है। अटेंडेंस इज द मेजर क्राइटेरिया। जिनकी अटेंडेंस कम है उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, ठीक है। सो ये जो इतना महंगा प्रोग्राम है आपके लिए, बजाज इसमें कुछ भी चार्ज नहीं करता है बेसिकली, लेकिन क्योंकि आपका यस बेटा बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फ्री चीजों की वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए एक नॉमिनल चार्ज है। क्योंकि आप जब थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज पे करेंगे तो आप मम्मी पापा को भी बताएंगे पापा ये जो है हमें प्रोग्राम करना है, और आप अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना बच्चों कि जब आपको हम प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं थोड़ा सा आपको अनकंफर्ट होता है, क्योंकि कैसा है ना, जो चीज की नहीं है वो करने के लिए बोले तो एक बार डर लगता है। तो अगर आप कोई अमाउंट नहीं देते हैं ना तो आप कैजुअली छोड़ देते हैं प्रोग्राम को, वो नहीं होना चाहिए। आपके कमिटमेंट के लिए एक नॉमिनल अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है, तो उस अमाउंट के बारे में मैडम आपको बताएंगी। सो ग्रॉसली स्पीकिंग ये आपका प्रोग्राम है। मैं अब ये प्रोग्राम में क्या कवर होगा
उससे रिलेटेड एक स्लाइड बताता हूं, देन वी वुड ओपन अप द सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो जस्ट 1 सेकेंड बेटा. ये देखो बच्चों, दिख रहा है ये? सबसे पहले जो है जैसे ये टोटल जो है मैंने कहा कितने आवर्स है, 56 आवर्स है. तो 56 आवर्स में से जो है 18 घंटे किसके लिए है? बैंकिंग के लिए है. बैंकिंग में क्या क्या कवर किया जाता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं. बेटा नहीं दिख रहा है स्लाइड? नो सर. अब दिख रहा है? दिख रही है. दिख रहा है? गर्ल्स, सर की स्क्रीन को आपको पिन करना है. इट इज विजिबल मैम. हाँ चलिए मैं पिन कर देता हूं. हाँ ठीक है. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्री ओवरव्यू है, एनबीएफसीज क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, बैंकिंग में एसेट्स, लोन्स, प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह के लोन है, अगर कभी एजुकेशनल लोन लेना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होती है, हाउसिंग लोन की प्रोसेस क्या होती है, आरबीआई के क्या रूल्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है बैंकिंग में. तो ये सभी चीजें जो है प्रैक्टिकल लेवल पे ये बैंकिंग मॉड्यूल में कवर की जाएगी. अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद इंश्योरेंस मॉड्यूल. कंसेप्ट ऑफ, ये भी 18 घंटे हैं. कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कैसे है, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, आईआरडीए के क्या रूल्स है, टेक्नोलॉजी से कैसे परचेस किया जाता है आजकल इंश्योरेंस, क्लेम की प्रोसेस क्या है, कभी आप बीमार पड़ गए और आपको हॉस्पिटल का क्लेम करना है तो क्लेम करने का तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको जो है मोटर क्लेम करना है तो मोटर क्लेम कैसे किया जाता है, ये सब प्रैक्टिकल लेवल पे नॉलेज आपको ये मॉड्यूल में दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट वन, एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स, जो 20 घंटे का है, यहाँ 18 लिखा है लेकिन 20 है. इसमें क्या क्या है, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स. कई बार जो है हम लिखने में जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो थोड़ी बहुत वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन स्किल्स, स्केल स्किल्स, परसुएशन स्किल्स, अगर कोई ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना. ठीक है. तो ये सब स्किल्स, जैसे आपको कोई चीज मनवाना रहता है आप मम्मी पापा से तो इजीली मनवा लेते हैं, लेकिन क्या आप किसी बाहर वाले को जो है अपनी कोई चीज के लिए कन्विंस कर सकते हैं, क्या वो स्किल आप और अपग्रेड करना चाहते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स वुड बी कवर्ड इन योर बिजनेस कम्युनिकेशन मॉड्यूल. तो ये कलेक्टिवली जो है आपका होता है 18, 18 और 20, ये 56 घंटे की जो है आपकी क्लासेस होती है जो 28 दिन में की जाती है. और ये पूरा करने के बाद में बिलीव मी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा अपने आप में. आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और किसी भी चीज के उसको चैलेंज को फेस करने में विलिंग रहेंगे. तो आज की सिचुएशन में आपके लिए बहुत जरूरी है आप इस तरह के प्रोग्राम को ज्वाइन करिए. भले ही आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस में जो है जॉब नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बैंकिंग की नॉलेज होना हर इंसान के लिए जरूरी है. और फर्दर जो है ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन जो चीज है वो हर इंसान की जरूरत है, उसको जो है इजीली कम्युनिकेट करना, बोलना आना चाहिए. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. मुंबई और पुणे के बच्चों में और आप में क्या डिफरेंस है, वही ये डिफरेंस है स्लाइट कॉन्फिडेंस लेवल का. नॉलेज उन्हें भी उतना ही है जितना आपको है. डिफरेंस ये है वे बच्चे एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सो इट इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग. तो फ्रॉम व्हेन इट वुड स्टार्ट सर, तो चलिए वो सब चीजें जो है मैं बताता हूं आपको. तो अब मैं जो है एक बार मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगा. मैम इन्हें जो है एक बार फीस के बारे में, इसके बारे में बता दीजिए, देन आपके इनके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं फर्दर जो है फिर यहाँ पे हैंडल करता हूँ. Okay, sir. Thank you. So, dear student, just one minute. इसकी फीस कॉलेज ने ओनली 500 रुपीज चार्ज की है.
अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आज आपको एक गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फीस पे कर सकते हो। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है, उस ग्रुप में आप में से जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप, सो फीस इज ओनली 500 रुपीज। सर प्लीज कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन करो, जो प्रोग्राम जो है जिसकी कॉस्ट अराउंड 30,000 है पर स्टूडेंट, ये पूरा जो है चीज जो है बजाज बियर कर रहा है। जस्ट आपको एक नॉमिनल 500 रुपए पे करना है। मैडम जो है कॉलेज के बैंक अकाउंट की लिंक जो है आपको शेयर करेंगी, तो आप जो है ऑनलाइन उससे जो है 500 रुपीज पे कर दीजिए उसमें, वो बैंक अकाउंट में। और जैसे ही पे करते हैं उसका स्क्रीनशॉट जो है मैम को जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे ही आप वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देती है, मैम आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक फॉरवर्ड करेंगी। उस रजिस्ट्रेशन लिंक को फिल करते से ही आपका जो है एनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास 50 बच्चों का एनरोलमेंट हो जाता है, हम फर्दर एनरोलमेंट क्लोज कर देंगे। इमीडिएटली ये 50 बच्चों की बैच फॉर्म होगी और नेक्स्ट वीक से जो है हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। सो हार्डली से सपोजिंगली हम 15 तारीख से या जब भी चालू करते हैं तो अगले 15 तारीख तक के आपके पास में इतना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। यू नीड टू गेट इंटरेक्ट विद द कॉर्पोरेट फैकल्टीज एंड आपके पास में 2 सर्टिफिकेशन होंगे विच वुड हैव अ अपर एज टू यू ओवर एंड अबाउ योर पीयर्स। टाइमिंग ऑफ द क्लास, बेटा टाइमिंग का ऐसा है कि हम मैम से जो है, राधा मैम से जो है प्रॉपरली जो है रूपा मैम से कनेक्ट करेंगे और जो मैक्सिमम बच्चों के लिए जो सबसे सूटेबल टाइमिंग है कंसिडरिंग योर ओवरऑल कॉलेज टाइमिंग्स आल्सो, उसके हिसाब से म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई टाइमिंग का। जो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे कि मैम ये टाइमिंग हमारे लिए सूटेबल है, तो मैम हमें कम्युनिकेट करेंगी एंड दैट वुड बी द टाइमिंग ऑफ द क्लास। सो आप मॉर्निंग चाहते हैं मॉर्निंग रख सकते हैं, नून आवर्स भी रख सकते हैं, इवनिंग आवर्स भी रख सकते हैं, whichever is most comfortable for the maximum students. Okay, any other questions relating to this? हाँ बेटा, ये पूरी क्लासेस जो है स्वाति सेइंग सर HR वर्कशॉप इज आल्सो ऑनलाइन। देखो बेटा कैसा है ना, गोइंग फॉरवर्ड दिस ऑनलाइन इज द नॉर्मल थिंग। नॉर्मल कैसे मैं बताता हूं, आप कल चल के आपका कोई इंटरव्यू होता है तो आपको कोई नहीं कहेगा कि बेटा आप जो है पूना ट्रैवल करके आओ फिर वहां पे इंटरव्यू दो। आपको सीधे सीधे जो है एक पैनल ऑफ टीम जो है ऑनलाइन इंटरव्यू लेगा। तो अगर आप ये चीजों से जितने जल्दी कंफर्टेबल हो जाए उतना अच्छा होगा। गोइंग फॉरवर्ड आप कोई जॉब में भी है, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है तो क्लाइंट कहेगा सर आप ऐसा करिए ना, आप ऑनलाइन ही प्रेजेंटेशन दे दीजिए, आप मेरे घर चल के क्यों आते हैं, मुझे भी तकलीफ आपको भी तकलीफ। ठीक है, सो जितना ज्यादा ये टेक्नोलॉजिकल चीजों को हम यूज करेंगे उतने ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, जितने ज्यादा कंफर्टेबल होंगे उतने इजीली इन चीजों में हम एक्सेल करेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द एंटायर क्लासेस द एंटायर थिंग। अब मैं तुम्हें बताता हूं ऑनलाइन की एक बात। ऑनलाइन में जो है हमें कई बार बच्चों ने क्या कहा है मालूम है, जैसे अभी आप लोग इतने फ्रीली मुझसे चैट कर रहे हैं ना, माइट भी ये फिजिकल क्लास रहता तो कई लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते। तो यही हमें फीडबैक मिला है, सर ऑनलाइन में जो भी मन में आता है फट से चैट पे पुट अप कर देते हैं और फैकल्टी जवाब दे देते हैं बराबर। कई बार जो है फिजिकल क्लास में हम इतनी जो है इतने बिंदास होके बात नहीं कर पाते थे, क्वेश्चंस पूछ नहीं पाते थे। सो दैट इज द डिफरेंस हियर। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये सब चीजें से एक्वेंट होना, और इसमें हम रोल प्लेस करते हैं। रोल प्लेस में मालूम है, सोचो आप 6 जने मिलके एक रोल प्ले, एक एक्टिंग कर रहे हो और ऑनलाइन वे में एक्टिंग कर रहे हो। कुड यू इमेजिन, बारी बारी से एक एक जना सेंटेंस बोलता है फिर वो रिप्लाई देता है। इट्स रियली एंटरटेनिंग, बहुत मजा आता है। इतनी एक्टिविटीज, इतने गेम्स है। हम इसमें ट्रेजर हंट खिलाते हैं आपको, और कई बार जो है क्रॉसवर्ड भी होता है इसमें। बहुत से गेम्स हैं जिसके थ्रू लर्निंग बहुत कुछ मिलती है आपको। सर जॉब, हाँ प्रतीक्षा इज सेइंग सर यू प्रोवाइड अस जॉब। बेटा ये जो है ना, मैंने क्या कहा कि ये प्रोग्राम क्या है कि आपकी जो है केपेबिलिटी मीट्स अपॉर्चुनिटी। आपको और केपेबल बनाना है, आपको जो है कॉन्फिडेंट बनाना है। आप जो है जॉब के पीछे मत भागिए, अगर आप केपेबल बन जाते हैं तो लोग आपके पीछे जॉब लेके भागेंगे।
तो हमारा इंटेंशन इस प्रोग्राम में आपको आपकी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, जॉब की अश्योरिटी नहीं है, लेकिन पॉइंट यह है कि बजाज में जो भी ओपनिंग्स आती है तो वो आपको बताई जाती है, आप उसके इंटरव्यू के लिए अपीयर करिए, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो बजाज आपको हायर करेगा, लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। मेन है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। और ये जरूरी नहीं है ना कि आपको यही ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है, आपको हो सकता है कोई और इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप वहां ज्वाइन करिए। जरूरी नहीं है ना कि आप यही ऑर्गेनाइजेशन, यही बीएफएसआई, आपको ये डोमेन अच्छा नहीं लगता है, कोई और डोमेन में आप जाना चाहते हैं, आप जो है से सपोजिंगली अपना करियर आईटी में बनाना चाहते हैं, आप कोई और फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, स्टिल ये प्रोग्राम के माध्यम से जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो हर जगह आपको काम में आता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क? बच्चों कुछ भी है मन में पूछ लो। व्हेन टू रजिस्टर, देखिए ना मैंने बताया ना सरवरी बेटा कि अभी आप जो है मैम आपको जो है एक पेमेंट का जो है डिटेल देंगी कि कहाँ आपको पेमेंट करना है। अगर आप कॉलेज में आके कैश में मैम को पे कर सकते हैं तो वैसा पे कर दीजिए, नहीं तो सेफर वे में जो है आप ऑनलाइन जो है पे कर दीजिए और उस स्क्रीनशॉट लेके उसका जो है मैडम को शेयर कर दीजिए, तो फिर मैडम जो है आपको रजिस्टर कैसे करना है उसकी लिंक आपको शेयर कर देंगी। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्म रहता है बजाज का, उसमें आपकी कुछ डिटेल पूछी जाती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सब पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है क्या आपने फीस पे कर दी है क्या। ठीक है, तो उस फीस के बारे में आप यस कहेंगे, हाँ हमने फीस पे कर दी है, और सबमिट, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप बैच में शामिल हो गए। ठीक है, जैसे ही फिर 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन आ जाता है हम बैच स्टार्ट कर देंगे। तो ये प्रोग्राम के बारे में सिर्फ अपने तक कन्फाइंड मत रखो, अपने फ्रेंड्स सभी को बताओ इसमें कि इट इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। जितने ज्यादा लोग इसमें बेनिफिट ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जो है जब हम ये प्रोग्राम करेंगे तो इतने ज्यादा लोग आते हैं, सिलेक्शन करना रहता है, इनको ज्यादा जरूरत है। इस साल हम इस सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो आ रहे हैं उन्हें हम ये प्रोग्राम देंगे। So join as early as possible, it would be helpful for you. Yes, madam is saying today after this session I will share the link of Google form through which you have to make the payment. So that's it from our end, students. Anything else you would like to ask? I would just do one thing. I would mention my name and contact number. So अगर आपको जो है फिर भी कुछ लगता है जो आप भूल गए पूछना यहाँ पे, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं यहाँ पे मेरा जो है नंबर मेंशन कर दे रहा हूं, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, तो यू कैन एनी टाइम कनेक्ट मी, और कुछ और क्वेरी है तो आप उस पे जो है मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो भी ऐसे बुरे समय में, तो हमने जो है रजाई ओढ़ के सोना नहीं चाहिए, हमें दौड़ के जो है वो दरवाजा खोलना चाहिए। Got this? So grab this opportunity with both the hands and increase your capability in every regard. Okay, chalo, that's it from my end. Ma'am, over to you. सर थैंक यू सो मच सर। गर्ल्स, आंचल अग्रवाल ने यहाँ व्हाट्सएप की लिंक शेयर की है, मैंने उसको कहा है तो आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं ताकि हमारा डायरेक्टली कन्वर्सेशन हो पाए। तो आप में से जितने भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट है वो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस सेशन के बाद में मैं गूगल फॉर्म उस ग्रुप पे शेयर करूंगी, आप में से जो इंटरेस्टेड है उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है, वहां बैंक की डिटेल्स भी होंगी। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है आप उसका स्क्रीनशॉट, गूगल फॉर्म में आपको उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, तो फाइल अपलोड ऑप्शन विल बी देयर। ओके, तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हो सकते हो। फीस इज ओनली 500 रुपीज। अगर आप कॉलेज में आके फॉर्म फिल करना चाहते हो, डायरेक्टली पे करना चाहते हो, तो आप आज आ सकते हो। अगर आप में से और किसी को कोई क्यूरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी। स्वाति जोत, do you have any query? Ma'am, there is my exam in February. Hello.
There is Yes, there Swati. is some Yes, sir. Yes, Swati, you are audible. ma'am, there is my exam in February. So 2-3 days are eligible for absence. Yes, सिद्धांत सर, प्लीज आंसर. फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. मिनिमम जो एक्सपेक्टेशंस रहता है आपका कि 75% के अबव अटेंडेंस होना चाहिए. तो वो 2-3 दिन अगर आप मिस भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज अंडरस्टैंडेबल एंड यू हैव अ जेन्युइन रीजन. हाँ, थैंक यू सर. सो नॉट की प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि आपका 100% अटेंडेंस ही चाहिए. अगर आपका जैसे जो है 80% 85% अटेंडेंस भी रहता है, दैट इज ओके. बट फ्रॉम नॉलेज पर्सपेक्टिव अगर आप जितना मैक्सिमम अटेंड करें, 100% अटेंड करें, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके बेटा. सर मे बी ये जो फेज सेम की एग्जाम रहेंगी वो फेब मंथ में रहने वाली है, तो उस ड्यूरेशन में हमें मैम 8 to 10 डेज का गैप लेना होगा आई थिंक. हाँ मैम, हम कैसा है, हम इट इज कॉमन फॉर ऑल. प्रोग्राम अगर बीच में एग्जाम्स है तो उतने दिन हम ब्रेक ले लेंगे, है ना. तो ही वुड टेक अप द कंसेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये ज्यादा ठीक है, ऐसा करना है सर, तो हम उसके हिसाब से शेड्यूल को जो है मॉडिफाई कर लेंगे. ओके सर. ओके. ओके. फर्दर आप में से किसी को कुछ पूछना है? आपके कुछ क्वेश्चंस है? यस मैम. हाँ हाँ, स्तुतिका पूछिए. मैम मैं पेमेंट जो है वो कॉलेज में आके करना चाहती हूँ, लेकिन आज कर नहीं सकती हूँ, तो कल आया तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा. क्योंकि कल आ मैं जाइए. बट टुमारो इज अ संडे, मींस वन मंडे. ओके मैम. मंडे को आप आ जाइए. ओके. मंडे को चलेगा ना मैम? चलो ओके. जी जी हाँ, डेफिनेटली चलेगा. मंडे को आइए आप. ओके मैम, थैंक यू. आप में से और किसी के कुछ प्रश्न है? आप लोग चैट बॉक्स में आजकल फिर से उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर करिए चैट बॉक्स में. आप उस पर क्लिक करिए, इमीडिएटली आप उस ग्रुप में आ जाएंगे, सो दैट मैं इजीली आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगी. और वहां आप चैट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो. सर प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप. Surely, सिद्धांत surely. सर. Yes. I am joining, ma'am. ओके सर. हाँ, आप में से और Yes, किसी को कुछ पूछना है? यस सर. सो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन. आप में से किसी के कोई भी क्वेश्चंस नहीं है? आपके पास क्लैरिटी है? Okay, ma'am, then we can conclude now. So, thank you for giving such valuable time to us. And बच्चों, make the best of this opportunity. चलो, best of luck. Do your best and do the registration as fast as possible. ओके सर, जस्ट 1 मिनट. थैंक यू सो मच सर. आपने बहुत ही सिंपल लूसिड लैंग्वेज में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया. उनका एक माइंडसेट प्रिपेयर करके दिया ताकि वो अपना ब्राइट फ्यूचर बना सके. सो थैंक यू सो